Good morning. Good morning, all of you. Welcome in the class. This is for degree part 1, Zoology Honors, paper 1, Canal System in Sponges. The sponges, that is the poriferans, are pore-bearing animals, diploblastic in nature. It has two layers of germinal layer, that is ectoderm and ectoderm and an endoderm, lined with a mesoderm. And the whole body is perforated. That is, therefore, the animals are called poriferan, pore-bearing animals. For all the physiological activities, this animal is dependent on water. So, this is the peculiar about the poriferans. Now, water circulatory system of sponges, also called as canal system, is the characteristic feature of phylum Porifera. It is the characteristic feature. No other organism bears canal system. The canal system is also known as auriferous system, and this canal system helps in all types of physiology going in the sponges of body. Each and everything, that is digestion, respiration, excretion, reproduction, all these things are dependent on the water, from incoming water coming from outside through those pores and going to outside, coming inside the body and going to the outside. And this, the current of water, helps in all physiological actions of the poriferans. The numerous perforation on the body surface of the sponges is for ingression. From these pores, the body water enters inside the body, and from osculum, that is the mouth of the sponges, water is going outside to the body. A continuous flow of water is going on. The sponges of ingression and egression of water current and are main constituent of the canal system. Inside the body, the water current flows through a certain system of spaces. अंदर कुछ स्पेसेस बने होते हैं, चैनल्स टाइप बने होते हैं, जो कि कॉमनली इसको अगर हम लोग देखें तो कैनाल सिस्टम कहेंगे, वेयर ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज अकर्स. जैसे अगर डाइजेशन है तो फूड इज कैप्चर्ड फ्रॉम द इनकमिंग वाटर एंड द एक्सक्रीटरी मटेरियल formed by the physiology are excreted in the water that goes outside through the outgoing water. It is a very important system or characteristic of the porifera. Now there are different groups of porifera, और सब में अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स मिलते हैं कैनाल सिस्टम में. तो डिफरेंट स्पॉन्जेस हैव डिफरेंट अरेंजमेंट एंड ग्रेड्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंटरनल चैनल्स. And according to the canal system, it has been divided into 3 types: एस्कोन टाइप, साइकोन टाइप एंड यूकोन टाइप. 3 तरह के अलग अलग, जैसे कि जैसे जैसे पॉरीफेरन्स कॉम्प्लेक्स होते गए, दैट एस्कोन टाइप इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. उससे कॉम्प्लेक्सिटी आई तो उससे ऊपर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ एनिमल तो साइकोन टाइप, और उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ है पॉरीफेरन, दैट इज यूकोन टाइप. तो वी विल डील इट वन बाय वन. तो नंबर 1 इज एस्कोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. दिस कैनाल सिस्टम इज सिंपल ऑफ ऑल 3. जैसा भी अभी मैंने बताया कि ये सबसे सिंपल है, सबसे सिंपलेस्ट poriferans में मिलता है. It is found in, as the name suggests, it is found in ascenoid type of sponges, like for example Leucosolania, and also in some developmental stages of cyconoid sponge. जो इसके बाद complexity में साइकोन आता है, तो साइकोनॉइड स्पॉन्ज के डेवलपमेंट स्टेज में ये सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम मिल सकते हैं, या एस्केनॉइड टाइप ऑफ स्पॉन्जेस में ये एस्कोन टाइप ऑफ canal system milte hain. For the example is Leucosolania. Now the body of the surface of asconoid type of sponges is pierced by number of minute pore. पूरी body पे जो ectoderm पे बहुत सारे छोटे छोटे pores होते हैं, and these pores are known as ostia. These pores are known as ostia. These pores are intracellular space within the tubes, like cell called porocyte. ये बीच में इंट्रासेलुलर सेल्स है, ट्यूब पोरोसाइट सेल्स के बीच में ट्यूब बने होते हैं, जो कि एंड दीज पोर एक्सटेंड रेडियली, वो मेसेनकाइम को चीरता हुआ open directly into the spongocoel में जाकर खुलता है. When you will see in next slide the figure, you will understand more clearly.
द स्पॉन्जोसाइट इज द सिंगल लार्जेस्ट कैविटी, जो बीच की इसकी कैविटी होती है स्पॉन्ज की सील मतलब कैविटी ऑफ स्पॉन्ज, दैट इज नोन एज स्पॉन्जोसील, is the single largest spacious cavity in the body of the sperm. The और स्पॉन्जोसील इनर लाइनिंग जो एक्टोडर्म है वो एक फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, कॉलर सेल्स जिसको कहते हैं, एंड इट इज नोन एज कोएनोसाइट्स, कॉलर जैसा सेल जिसमें एक फ्लैजिला निकला होता है, therefore it is also known as flagellated cells or collar cells or coenocyte. A spongocyte outside and a spongocele opens outside through a narrow circulum, उसका जो माउथ जैसा ओपनिंग होता है उसे ऑस्कुलम कहते हैं, located at the distal end and it is fringed with large monoaxon spicules. और जो monoaxon एक कांटे वाले जो spicules होते हैं, we will study in skeleton of sponges the types of spicules. तो मोनोएक्सोन स्पिक्यूल से घिरे होते हैं, दैट इज द माउथ ऑफ द ऑस्कुलम, जो उसकी ओपनिंग होती है स्पॉन्जोसील की टुवर्ड्स द आउटसाइड इज नोन एज ऑस्कुलम. द सराउंडिंग सी वाटर एंटर, जो बाहर के पानी है वो एंटर्स द कैनाल सिस्टम थ्रू ऑस्टिया, जो पोर्स होते हैं उस ऑस्टिया के थ्रू अंदर घुसेंगे. द फ्लो ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड, और वो कैसे अंदर कैसे आएगा पानी, बिकॉज द इनर लाइनिंग इज कोएनोसाइट्स फ्लैजिलेटेड सेल्स है, तो फ्लैजिला के कंटिन्यूअस बीटिंग से एक वाटर मूवमेंट पैदा होगा जो कि वो वाटर करंट को अंदर की ओर खींचेगा. द रेट ऑफ वाटर फ्लो इज स्लो होता है क्योंकि पोर्स बहुत छोटे होते हैं और स्पॉन्जोसील जो है लार्ज है, तो स्पॉन्जोसील is a large spongophile contains much water which cannot be pumped out through a single osculum. जितने रेट से पानी बाहर निकलता है वो कम रहता है, इसीलिए धीरे धीरे पानी एंटर करते हैं ऑस्टिया से. This in figure you can be confirm. This is the these are the dermal ostia. These are the डर्मल ऑस्टिया. पोरोसाइट सेल्स आप देख सकते हैं, ये सब जो छिद्र टाइप स्ट्रक्चर है, पोर लाइक स्ट्रक्चर, ये डर्मल ऑस्टिया है. डर्मल क्योंकि बाहर है, और ये जो आपको रेड कलर से दिख रहा है दिट इज द पिनेकोडर्म, ये आउट एक्टोडर्म है, एंड दीज आर द कोएनोसाइट्स. कोएनोसाइट, these are the कोएनोसाइट, that is flagellated cell और collar cells. तो ये जो इसमें देख रहे हैं फ्लैजिला है, ये बीटिंग ऑफ फ्लैजिला से एक वेव करंट पैदा होता है, तो यहाँ से वाटर एंटर होते हैं अंदर. यू कैन सी इंग्रेसिंग वाटर थ्रू डर्मल ऑस्टिया. और ये ऑस्कुलम है, ये जो इसका ओपनिंग है, दिस माउथ लाइक ओपनिंग इज नोन एज ऑस्कुलम. हियर ये दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन द सिंपल. इसमें कहीं कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, पानी ऑस्टिया के थ्रू अंदर आया और सीधा कहाँ गया, स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से सीधा कहाँ गया, बाहर. बस इतना ही है ल्यूकोसोलोनिया में. एस्कोनसाइट में बहुत सिंपल है. द वाटर इज वी कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. कोर्स ऑफ वाटर करंट इन द एस्केनॉइड टाइप ऑफ एस्केनर, इंग्रेसिंग वाटर थ्रू डर्मल ऑस्ट्रिया एंटर डायरेक्टली इनटू द स्पॉन्जोसील, और स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के थ्रू आउटसाइड चले जाते हैं, तो दिस इज एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन एस्केनॉइड or Leucosolenia. Now we will come to the second type, that is much more complex from the Ascon type. This is the Sycon type of canal system. The Sycon type of canal system is more complex compared to the Ascon type. Ascon type से अगर हम compare करें तो उससे complex है, because यहाँ पे अभी आप लोग देखेंगे कि जब वो फोल्डिंग हो जाता है, वॉल्स की फोल्डिंग होने से और बहुत सारे चैनल्स फॉर्म होते हैं. ये एकदम सिंपल एस्कॉन में हमने देखा कि एकदम सिंपल टाइप का बॉडी वॉल था, बट इन फर्दर फोल्डिंग होने से वो इसमें और अलग अलग चैनल्स फॉर्म हो जाते हैं, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोनाइट टाइप ऑफ स्पॉन्जेस लाइक साइकोन या स्काइफा में. Theoretically, this canal system is derived from the asconite type by the horizontal folding of wall. मैंने कहा ना, जब ये एस्कॉन टाइप में सिंपल वॉल था और इसके अंदर ऐसे फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है वॉल की. तो यहाँ पे जैसे डर्मल ऑस्टिया डायरेक्ट स्पॉन्जोसील से हो रहा है, अब यहाँ पे अलग अलग चैनल बन रहे हैं.
अब दो तरह के कैनाल बन रहे हैं, एक जो बाहर की ओर खुल रहा है, एक जो अंदर की ओर खुल रहा है, जो कि एस्कॉन में नहीं था। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये एस्कॉन टाइप से साइकोन टाइप बना है बाय द फर्दर फोल्डिंग ऑफ द वॉल, फर्दर फोल्डिंग ऑफ द वॉल, ऐसे ऐसे वॉल की फोल्डिंग हो गई, तो ये साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम बना है। ऑल्सो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट ऑफ स्काइफा क्लियरली शो, अभी हमने पहले भी बताया था कि एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम साइकोन टाइप के एम्ब्रॉयनिक स्टेजेस में मिलता है, तो इट विल शोइंग दैट कि ये उसी से डेवलप हुआ है, एस्कॉन से साइकोनॉइड टाइप डेवलप हुआ है। Now body of a cycloid type include two types of canal. अब दो तरह के कैनाल बन गए ना, एक रेडियल कैनाल, एक इनकरेंट कैनाल। अभी फिगर में दिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। ये कैनाल देखिए, एक बाहर की ओर खुलने वाला कैनाल, एक अंदर की ओर खुलने वाला। तो बाहर की ओर जो खुलने वाला कैनाल है दैट इज नोन एज इनकरेंट कैनाल, क्योंकि पानी पहले यहीं आएगा, और जो अंदर की ओर स्पॉन्जोसील की ओर जो कैनाल खुला है दैट इज नोन एज रेडियल कैनाल। अब पैरेललिंग एंड अल्टरनेटिंग विथ ईच अदर, आप देख सकते हैं एक रेडियल कैनाल, एक इनकरेंट कैनाल, एक रेडियल कैनाल, एक इनकरेंट कैनाल, एक दूसरे के पैरेलल और अल्टरनेट कर रहे हैं। एंड ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड बाय अ माइन्यूट पोर, यहाँ पे पोर्स, सबके बीच में पोर्स होंगे, तभी पानी यहाँ से यहाँ से यहाँ जाएगा, पोर्स होते हैं। both these canals blindly enter into the body wall, इनका जो माउथ है दोनों, एक बाहर की ओर बंद है, एक अंदर की ओर बंद है, लेकिन कनेक्टेड किसके थ्रू एक दूसरे से है, पोर्स के थ्रू। इनकरेंट पोर्स आर नोन एज डर्मल ऑस्टिया, found on the outer surface of the body. These incurrent pores opens into incurrent canal. ये आप देख सकते हैं ये फिगर, ये डर्मल ऑस्टिया है, ये इनकरेंट कैनाल है, ये रेडियल कैनाल है। ये बीच वाला जो अंदर की ओर खुल रहा है वो रेडियल कैनाल है, जो बाहर की ओर खुल रहा है वो इनकरेंट कैनाल है। द इनकरेंट कैनाल्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड, आप देख सकते हैं इनकरेंट कैनाल, क्योंकि ये एक्टोडर्म से लाइन है, तो एक्टोडर्म फ्लैजिलेटेड रेड कलर का जो आप देख सक रहे हैं ये एक्टोडर्म है, तो एक्टोडर्म से लाइन है, तो ये फ्लैजिलेटेड नहीं है। कौन? इनकरेंट कैनाल। और जो रेडियल कैनाल है वो अंदर की ओर से है, वो फ्लैजिलेटेड से लाइन है, therefore it is a flagellated canal. The incurrent canal are non-flagellated as they are lined with pinacocytes. स्पॉन्जेस का एक्टोडर्म को पिनाकोसाइट्स भी कहते हैं, and not coenocyte. coenocyte से नहीं है। The incurrent canal leads into the adjacent radial canal through the minute opening called prosopyle. आगे अभी एक नया वर्ड आया जो कि एस्कॉन में नहीं था, क्योंकि एस्कॉन में डायरेक्ट ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में, अब ये स्पॉन्जोसील ये है और यहाँ है ऑस्टिया, इसके बीच में इतने से पानी गुजर के आना है। तो अब जो इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच में जो ओपनिंग होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रोसोपाइल। ये ओपनिंग है, ये इनकरेंट कैनाल है, ये रेडियल कैनाल है। ये दोनों इनकरेंट कैनाल जब रेडियल कैनाल के थ्रू जिससे खुलेगा इसको कहेंगे प्रोसोपाइल। प्रो मीन्स फर्स्ट, पाइल मीन्स ओपनिंग और छिद्र, पहला छिद्र। ऑस्टिया तो है ही, डर्मल ऑस्टिया जो बाहर है, ये डर्मल ऑस्टिया, ये सब तो है ही, लेकिन ये जो इनकरेंट कैनाल जब रेडियल कैनाल में जिस ओपनिंग के थ्रू खुलता है दैट ओपनिंग इज नोन एज प्रोसोपाइल। प्रो मीन्स फर्स्ट, पाइल मीन्स ओपनिंग और छिद्र। ऑन द अदर हैंड रेडियल कैनाल आर फ्लैजिलेटेड। अब रेडियल कैनाल हम लोग देख सकते हैं कि फ्लैजिलेटेड है, येलो बिकॉज इट इज लाइंड विथ कोएनोसाइट्स एंड दीज कैनाल्स ओपनड इनटू द सेंट्रल स्पॉन्जोसील। अब ये स्पॉन्जोसील के में खुल रहे हैं, स्पॉन्जोसील में खुल रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये ओपनिंग है, या देख सकते हैं ये ओपनिंग, दिस इज नोन एज एपोपाइल। अब दो तरह के पाइल आए, प्रोसोपाइल एंड एपोपाइल। प्रोसोपाइल क्या है? इनकरेंट कैनाल का रेडियल कैनाल के ओपनिंग को कहते हैं, दैट इज प्रो पहले कौन आएगा? प्रोसोपाइल। एपोपाइल जो दूसरा लास्ट आएगा वो सॉरी
रेडियल कैनाल का स्पॉन्जोसील के बीच में जो ओपनिंग है, ये सारे ओपनिंग जो है, ये सारे ओपनिंग है, ये सब एपोपाइल है। क्लियर? बाय इंटरनल ऑस्टिया और एपोपाइल। in साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम स्पॉन्जोसील इज नैरो। अब अगर आप एस्कॉन का फिगर याद हो तो एस्कॉन का स्पॉन्जोसील ज्यादा ब्रॉड था, अब ये नैरो हो गया, क्योंकि देख सकते हैं फोल्डिंग ऑफ वॉल हो गया, ये फोल्डिंग हो गया इतने वॉल का, जो कि उसमें एस्कॉन में नहीं था। फोल्डिंग वॉल यहाँ पे हो गया है, तो सॉरी, इसीलिए स्पॉन्जोसील उससे नैरो है। नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी लाइंड विद पिनेकोसाइट। इट ओपन्स थ्रू द एक्सटीरियर थ्रू एन एक्सकरेंट। ये जो बाहर की ओर किससे खुलेगा? ऑस्कुलम के थ्रू। दिस ओपनिंग इज नोन एज ऑस्कुलम which is similar to that of एस्कॉन type of canal system. अगर अब इसमें पानी का हम लोग फ्लो देखें तो कहाँ आएगा? सबसे पहले डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में आएगा। इनकरेंट कैनाल के थ्रू ये प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल चैम्बर में जाएगा। रेडियल कैनाल में ये एपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोसील में आएगा। स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, फ्रॉम डर्मल ऑस्टिया इट इज कमिंग इनटू इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल के बीच में जाने के लिए प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल में आया। रेडियल कैनाल से स्पॉन्जोसील के थ्रू आने के लिए किसके थ्रू? एपोपाइल। एपोपाइल से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर। ये आपका हो गया फ्लो ऑफ वाटर। यू कैन सी हियर, ingressing water will from dermal ostia come into incurrent canal. Incurrent canal से प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से एपोपाइल के थ्रू स्पेंजोसील से, और स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के थ्रू आउटसाइड। The Sycon canal system takes more complex in few species like Grantia, where the incurrent canals are irregular branching, forming large सबडर्मल। अगर इस साइकोन टाइप में भी दो तरह के मिलते हैं, एक सिंपल साइकोन टाइप, एक कॉम्प्लेक्स साइकोन टाइप। तो जब कॉम्प्लेक्स साइकोन टाइप में जाएंगे ग्रांशिया में, तो बीच बीच में डर्मल पाउचेस बन जाते हैं। दिस इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्टेक्स इन्वॉल्विंग pinacoderm and mesenchyme spreading all over the surface of the sponges. Now third one is Leucon type of canal system. Again more folding of body wall occurs, और complex हो रहा है। एस्कॉन प्लेन था, उसमें फोल्डिंग हुआ तो साइकोन बना। अब साइकोन के अंदर भी फोल्डिंग हो जाएगी, साइकोन के अंदर भी फोल्डिंग हो जाएगी तो ल्यूकोन टाइप बनेगा। साइकोन में जैसे इस टाइप के स्ट्रक्चर बने थे, इस टाइप के स्ट्रक्चर बने थे, अब इसमें फर्दर फोल्डिंग हो जाएगी तो ये भी ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाएगा। then it is form as Leucon type. फिर छोटे छोटे chambers बन जाएंगे। You can see the difference between the two. This type of canal system results in the further folding of the body wall of the Sycon system of canal system. This canal system is the characteristic of leuconite of sponge. Ascon is characteristic of ascenoid type of sponges. Syconite type is Sycon type is characteristic of syconite, and Leucon type is characteristic of leuconite type of sponges like spongilla. In this type of the radial symmetry is lost. इसमें symmetry इतना complex हो जाता है कि उसकी radial symmetry lost हो जाती है, और due to the complexity of the canal system और irregular symmetry हो जाती है. Now the flagellated chambers. अब जो flagellated canal था, ये फ्लैजिलेटेड कैनाल था साइकोन में। अब ये छोटे छोटे चैम्बर्स में बढ़ जा रहा है, छोटे छोटे गोल गोल चैम्बर में। तो अब यहाँ हम लोग क्या कहेंगे? इसको फ्लैजिलेटेड चैम्बर कहेंगे। साइकोन में हमने उसको फ्लैजिलेटेड कैनाल कहा था, अब इसमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बन जाएंगे ऐसे गोल गोल। इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा।
अब जो ये नई बीच में कैनाल बना, इसको अब हम लोग एक्सकरेंट कैनाल कहेंगे. नाउ वी आर नॉट कॉलिंग इट फ्लैजिलेटेड कैनाल, बट वी कैन कॉल इट फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, बिकॉज देयर आर so many chambers, flagellated chambers are formed. In the flagellated chambers are small, वो small है compared to that asconide and cyconide type of sponges. These chambers are lined with coenocytes. Coenocytes के से lined है, इसीलिए हम लोग इसे flagellated chambers कर रहे हैं. And are spherical in shape. All other spaces are lined with pinacocytes. Red flagellated chamber को छोड़कर बाकी जितने भी spaces हैं सभी pinacocytes से lined हैं. The incurrent canals open into the flagellated chambers through prosopyle. बाहर से अब incurrent canal जो पहले साइकोन टाइप में incurrent canal prosopyle के थ्रू रेडियल कैनाल में खुल रहा था. Now अब prosopyle के थ्रू रेडियल कैनाल नहीं कह के हम लोग रेडियल चैम्बर या flagellated chamber कहेंगे. These flagellated chambers in turn communicate with excurrent canal. अब ये बहुत सारे flagellated chambers, यहाँ पे एक नया कैनाल फॉर्म हो गया. ये सब इसमें खुलेंगे, ये इसमें खुलेंगे, ये इसमें खुलेंगे, ये सब इसके अंदर खुलेंगे. तो अब एक नया यहाँ पे नेमिंग आया, दैट इज एक्स करंट कैनाल. अब उसमें इन करंट कैनाल था जो बाहर की ओर खुलते थे, और इन करंट कैनाल साइकोन टाइप में खुलते थे रेडियल प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल एपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोसील में. अब यहाँ पे एक चीज बढ़ गया, इन करंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल चैम्बर या फ्लैजिलेटेड चैम्बर में खुलेंगे. और फ्लैजिलेटेड चैम्बर किसके अंदर खुलेंगे? सभी खुलेंगे एक्स करंट कैनाल के थ्रू. दिस फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स इन टर्न्स कम्युनिकेट विथ एक्स करंट कैनाल थ्रू एपोपाइल. अब ये एपोपाइल के थ्रू एक्स करंट कैनाल में खुलेंगे. एंड द लार्ज एंड स्पेसियस स्पॉन्जोसील विच इज प्रेजेंट इन एक्स, और इसमें और स्पॉन्जोसील और भी छोटा हो गया, कैनाल जैसा हो गया. हियर द स्पॉन्जोसील इज मच रिड्यूस्ड एंड दिस एक्सकरेंट कैनाल फाइनली कम्युनिकेट्स विद द आउटसाइड थ्रू ऑस्कुलम. यू कैन सी हियर. अब ये देखिए छोटे छोटे चैम्बर्स में हो गया. अब देख सकते हैं कि स्पॉन्जोसील कितना, ये इनकरेंट कैनाल हुआ, इनकरेंट कैनाल ये प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल चैम्बर से रेडियल चैम्बर में आया, रेडियल चैम्बर से एपोपाइल के थ्रू एक्स करंट कैनाल में. ये सब एक्स करंट कैनाल है, और ये आपका स्पॉन्जोसील से बाहर ऑस्कुलम के थ्रू और स्पॉन्जोसील से बाहर चले जाएंगे. यहाँ पे एक चीज बढ़ गया, रेडियल कैनाल इज चेंज्ड इनटू रेडियल चैम्बर और फ्लैजिलेटेड चैम्बर, और एक नया एक्सकरेंट कैनाल खुल गया है, और एक्सकरेंट कैनाल इज कम्युनिकेटिंग विथ अ स्मॉल. अब देखिए ये ट्यूब लाइक है, स्पॉन्जोसील एकदम ट्यूब लाइक हो गया स्ट्रक्चर, बिकॉज कॉम्प्लेक्स हो गया एनिमल. यू कैन सी द ingressing water will from dermal ostia, it will enter into incurrent canal. इनकरेंट कैनाल का ओपनिंग फ्लैजिलेटेड चैम्बर में किसके थ्रू होगा? प्रोसोपाइल के थ्रू. प्रोसोपाइल के थ्रू ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में खुलेगा. अब फ्लैजिलेटेड चैम्बर नाउ एपोपाइल के थ्रू अब ये डायरेक्ट एक्सकरेंट कैनाल में खुलेंगे, और एक्सकरेंट कैनाल ऑस्कुलम के थ्रू आउटसाइड की ओर खुलेगा. ये दिस इज द ल्यूकोनाइट टाइप ऑफ. अब ल्यूकोन में भी 3 तरह के होते हैं. ल्यूकोन टाइप में भी 3 तरह के. ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम हैज द फॉलोइंग 3 सक्सेसिव ग्रेड्स ऑफ द इवोल्यूशनरी पैटर्न. उसमें 3 तरह के होते हैं. नंबर 1 इज यूरिफाइलस टाइप. Euryphilus type. This is the simplest and the most primitive type of. In this type, the flagellated chamber directly communicates with the excurrent canal through broad aperture called apopyle. इसमें apopyle बहुत broad होता है, बहुत broad होता है. ये apopyle है, ये broad है. इसका जो mouth है broad है. तो ये बहुत सिंपल है. इसमें इसका क्या खासियत है कि जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द एक्सकरेंट कैनाल थ्रू ब्रॉड एपर्चर कॉल्ड एपोपाइल. ठीक है. अब एफोडल और डिफ्लोडल. अब एफोडल और डिफ्लोडल में क्या अंतर है? एफोडल किससे मैच हो रहा है? एपोपाइल से. क्लियर? एपोड दैट मीन्स कि इसमें एपोपाइल जो है, एपोपाइल में कुछ मॉडिफिकेशन हो रहे हैं. इन दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम द एपोपाइल्स आर ड्रॉन इनटू अ नैरो कैनाल. यहाँ एपोपाइल ब्रॉड है, यहाँ पे
एपोपाइल जो है ऐसे नैरो कैनाल के रूप में बन जाएंगे, नैरो कैनाल के रूप में बन जाएंगे, तब ये एपोडल टाइप होगा। और ये जो नैरो कैनाल बना इट इज नोन एज एफोडस। एपोपाइल का ट्यूब बन रहा है and therefore it is known as एफोडस and this connect to the flagellated chambers with the excurrent canal। मतलब पहले ये ब्रॉड ओपनिंग के थ्रू excurrent canal में खुलता था, अब ये ट्यूब के रूप में, कौन सा एपोपाइल एक ट्यूब के रूप में बन जाएगा, that is known as, this tube is known as एफोडस and then it will open into excurrent canal। Now third type is diplodal type। In diplodal type, in some sponges along with एफोडस, डिप्लोडल मतलब दो हमारे पास दो पाइल है, एक प्रोसोपाइल एक एपोपाइल। तो अगर एपोपाइल में ट्यूब बन जाता है देन इट इज एफोडल टाइप। अगर दोनों में ट्यूब बन जाता है, प्रोसोपाइल इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड एपोपाइल इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, अलोंग द एफोडस, एफोडस क्या हुआ, एफोडस हुआ एपोपाइल का ट्यूब, और अनदर नैरो ट्यूब इज कॉल्ड प्रोसोडस। क्योंकि प्रोसोपाइल भी ट्यूब जैसा बन गया तो ये प्रोसोडस उसको कहेंगे। इज प्रेजेंट बिटवीन, ये प्रोसोपाइल कहाँ था, इन करंट कैनाल ऑफ फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बीच में था। ये बीच में भी जैसे अब ये आप देख सकते हैं, दिस इज फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, दोनों तरफ ट्यूब बन गया। ये इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल में भी ये ट्यूब है, दिस इज, अगर ये प्रोसोपाइल है देन इट इज नोन एज प्रोसोडस, प्रोसोडस। और ये एपोपाइल का ट्यूब है, दिस इज विल नोन एज एफोडस। तो इसलिए दोनों में हो रहा है दो, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज नोन एज diplodal type of canal system, spongilla। So these three types are the modification of leucon type only। Euryphilus, in which the apopyle is a broad like tube, broad opening. In aphodal, apopyle converts into a narrow canal known as aphodus। It is then this type of canal system is known as aphodal type। For example, Geodia। diplodal, if both the apopyle and prosopyle दोनों अगर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बन जाए तो एपोपाइल का ट्यूब बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे एफोडस, और प्रोसोपाइल का जो ट्यूब बनेगा उसको कहेंगे प्रोसोडस। अगर ऐसा हो जाए तो उसको कहेंगे डिप्लोडल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इट इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोन टाइप बट डिप्लोड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम एंड इट इज फाउंड इन स्पॉन्जिला। So these are the three types of canal systems: Ascon type, Sycon type and Leucon type। And in Leucon type there are three type of canal system, that is Euryphilus type, Aphodal type and Diplodal type। Now what are the functions of this water current? ये water current क्यों आ रहा है हमेशा और जा रहा है, पहले भी मैंने बताया था, because the poriferans या जो sponges है वो हर फिजियोलॉजी के हर चीज के लिए वाटर पे डिपेंडेंट है, because these are primitive animal, बहुत प्रिमिटिव एनिमल है। इनमें कोई डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, अभी तीसरा लेयर भी नहीं है इनके पास, तो ऑर्गेन तो है ही नहीं, सिर्फ दो लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म इज नोन एज पिनेकोसाइट्स एंड एंडोडर्म दैट आर कॉलर सेल्स और फ्लैजिलेटेड सेल्स आर नोन एज कोएनोसाइट्स। द वाटर करंट जो आ रहा है बाहर जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके लिए। तो वाटर करंट प्लेज द मोस्ट वाइटल रोल इन द फिजियोलॉजी ऑफ स्पॉन्ज। द बॉडी वॉल में जो ऑस्टिया है, आउटर लेयर पिनेकोडर्म, अंडर इनर लेयर कोएनोडर्म, अभी मैंने बताया। पिनेकोडर्म में पोरोसाइट्स होते हैं जिसमें ऑस्टिया होता है, डर्मल ऑस्टिया। कोएनोडर्म इज कंपोज्ड ऑफ कोएनोसाइट और कॉलर सेल्स, और कोएनोसाइट्स में फ्लैजिलम होते हैं। देयरफॉर इट इज नोन एज द वाटर करंट इज कॉज्ड बाय द बीटिंग ऑफ फ्लैजिला ऑफ द कॉलर सेल। वाटर करंट कैसे क्रिएट होता है, बाय द कंटिन्यूअस बीटिंग ऑफ द flagella of the collar cells। Now these are the functions of the sponges। All exchanges between sponge body and external media are maintained by the mean of current। ये पानी कंटिन्यूअस ऑस्टिया के थ्रू अंदर आ रहा है, स्पॉन्जोसील से होते हुए बाहर जा रहा है, तो ये अंदर आने से बाहर जाने के क्रम में इसकी सारे फिजियोलॉजिकल एक्सचेंजेस हो जाते हैं। फूड एंड ऑक्सीजन, खाना आ रहा है तो वो फिल्टर फीडिंग कर लेंगे, ऑक्सीजन पानी आ रहा है बाहर से, उसमें से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ले लेंगे और डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड वापस पानी में छोड़ देंगे, वो बाहर चला जाएगा।
है। तो ये रेस्पिरेशन हो गया। ऑल्सो द एक्सक्रीटा, जितने भी एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे वो पानी में डाल देंगे, फिर वो पानी के थ्रू बाहर चला जाएगा। द रिप्रोडक्टिव बॉडीज, गैमेट्स जो है स्पर्म और ओवम को भी पानी में डाल दिया जाएगा और वो ऑस्कुलम में बाहर जाके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बिकॉज दीज आर द सिंपल एनिमल्स, वाटर करंट के थ्रू बाहर चले जाएंगे। तो दिस इज अबाउट द canal system in sponges. Thank you all of you for listening.